LFHS Education Channel. MP Both Books. Read Lesson. Class 7th. Lesson 3. The wheat is cheaper. One evening Robbie and Ashik went to see David Smith. David's father, Mr. Smith, is an Englishman. He has traveled widely and he is now working in India. Ashik and Robbie met David only a few days ago, but the three boys now meet almost every day. That evening the boys started talking about stories. Ashok said, Rowie reads a lot of story books. Perhaps he wants to become a writer or a storyteller. Rowie, everybody likes stories. I like listening to good stories. Don't you, David? David, yes, of course. Why don't you tell me one? Robbie, I wanted you to tell us a good story. Please tell us one. David, I will, some other day. But today you must tell me a good Indian story. Robbie, all right, I will. I spent my last summer vacation with my grandfather in his village. He used to tell me at least one story every night. I'll tell you one of those stories today. Ashik, what is the story called? Robbie, the wheat is cheaper. David, cheaper than what? Robbie, that you must tell me after listening to the story. This is how it goes. Long ago in an Indian town there lived a merchant. He was very greedy. He used to go to towns to buy or sell large quantities of grain, and even on his way to these towns he thought of making money. One day when he was going to a town to buy some grain, he saw a farmer some distance away. Here, he thought, is an opportunity to get some money out of this simple villager. So he walked quickly up to him and started being friendly with him. He said to the farmer, when I was young, I used to go a long distance alone, but as I am getting old, I would like a companion with me always, as we are going. The same way, it is good for us to be together. We shall enjoy each other's company. The farmer said, thank you. I have never seen you before. I believe you are a stranger. No, the merchant said, I am a merchant and I have been here before, but I travel to many places. But how can I be a good companion to you? The farmer asked. I am only a simple villager and you have seen a lot of this world. But perhaps it will be all right if you do all the talking. I shall listen to what you say. This is not fair. I can't do all the talking. I have an idea. Each one of us can tell the wildest possible tale. If I cast doubt on your story, I'll pay you 100 rupees. But if you cast doubt on mine, you will have to pay me an equal sum of money. How do you like the idea? Fine, said the farmer. And so is it a bargain? The merchant said. Yes, it is, said the farmer. Now, let's begin. As you are the wiser of us two, you must begin. The merchant began his story. As I was going along this road one day, I saw a merchant with a long train of camels. There were 101 camels and each of them was loaded with large quantities of grain. Farmer said, I have seen trains of camels myself and they are very often loaded with very heavy goods. Merchant added, all the camels were tied together with ropes, nose to tail. It was a long train, about half a mile. No, why should I? Said the farmer promptly. Now, the merchant was disappointed, but he decided to make another attempt to get the 100 rupees. He continued, a princess was sitting in her garden and a maid was combing her hair. The princess happened to look up at the sky. Just then, the kite I spoke about was flying in the sky right above her head. The first camel gave the bird kite such a kick that it let go him and the train of camels fell right into the princess's left eye. Poor girl. There were 101 animals and they must have given her a lot of pain. And then? The merchant did not know what to say. But he made a last attempt.
Then the princess started crying with pain. Her maid stopped combing her hair. She carefully lifted the princess's eyelid and removed all the camels one after the other from her eye and put them into her pocket. "That was a good maid," said the farmer. "And then?" The merchant could not think of anything more. So he said, "This is all, and is the end of my story. Now it is your turn." गेहूं सस्ता है। एक शाम रवि और अशोक डेविड स्मिथ को देखने गए। डेविड के पिता श्री स्मिथ एक अंग्रेज हैं। उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की है और वो अब भारत में काम कर रहे हैं। अशोक और रवि कुछ दिनों पहले ही डेविड से मिले थे, लेकिन तीनों लड़के अब लगभग हर दिन मिलते हैं। उस शाम लड़कों ने कहानियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अशोक ने कहा, रवि बहुत सारी कहानी की किताबें पढ़ता है, शायद वह एक लेखक या कहानीकार बनना चाहता है। रवि, हर कोई कहानियों को पसंद करता है। मुझे अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है। क्या आप डेविड नहीं हैं? डेविड, हाँ बिल्कुल। आप मुझे एक क्यों नहीं बताते? रवि, मैं चाहता था कि तुम हमें एक अच्छी कहानी सुनाओ, कृपया हमें एक बताएं। डेविड, मैं करूँगा किसी और दिन, लेकिन आज आप मुझे एक अच्छी भारतीय कहानी सुनाएं। रवि, बिल्कुल ठीक, मैं करूँगा। मैंने अपनी पिछली गर्मियों की छुट्टी अपने दादा के साथ उनके गाँव में बिताई थी। वो हर रात मुझे कम से कम एक कहानी सुनाता था। मैं आज आपको उनमें से एक कहानी सुनाता हूँ। अशोक, कहानी क्या कहलाती है? रवि, गेहूं सस्ता है। डेविड, क्या की तुलना में सस्ता? रवि, वो जो आपको कहानी सुनने के बाद मुझे बताना होगा। इसी तरह होता है। बहुत समय पहले एक भारतीय शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत लालची था। वह बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने या बेचने के लिए शहरों में जाता था और यहाँ तक इन कस्बों के रास्ते में उसने पैसे कमाने के बारे में सोचा। एक दिन जब वह कुछ अनाज खरीदने के लिए एक शहर जा रहा था, तो उसने कुछ दूर एक किसान को देखा। यहाँ उसने सोचा, इस साधारण ग्रामीण से कुछ पैसे प्राप्त करने का अवसर है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास गया और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगा। उन्होंने किसान से कहा, जब मैं छोटा था मैं अकेले लंबी दूरी तय करता था, लेकिन जैसा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं हमेशा अपने साथ एक साथी को पसंद करूँगा। जैसा कि हम उसी तरह से जा रहे हैं, यह हमारे लिए अच्छा है, एक साथ रहना। हम एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेंगे। किसान ने कहा, धन्यवाद, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरा मानना कि आप एक अजनबी हैं। नहीं, व्यापारी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं यहाँ पहले भी रहा हूँ, लेकिन मैं कई स्थानों की यात्रा करता हूँ। लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छा साथी कैसे हो सकता हूँ? किसान ने पूछा, मैं केवल एक साधारण ग्रामीण हूँ और आपने इस दुनिया को बहुत देखा है, लेकिन शायद यह सब ठीक हो जाएगा यदि आप सभी से बात कर रहे हैं। मैं वही कहूँगा जो आप कहते हैं, यह उचित नहीं है। मैं सभी बात नहीं कर सकता। मेरे पास एक विचार है, हम में से हर एक बेतहाशा संभव कहानी बता सकता है। अगर मुझे आपकी कहानी पर संदेह है तो मैं आपको 100 रुपये का भुगतान करूँगा, लेकिन आप मेरे बारे में संदेह करते हैं, आपको मुझे एक समान धनराशि देनी होगी। आपको यह विचार कैसा लगा? ठीक है, किसान ने कहा, और इसलिए यह एक सौदा है? व्यापारी ने कहा, हाँ यह है। किसान ने कहा, अब चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप हम दोनों के समझदार हैं, आपको शुरू करना चाहिए। व्यापारी ने अपनी कहानी शुरू की। जैसा कि मैं एक दिन इस सड़क पर जा रहा था, मैंने एक व्यापारी को ऊँटों की लंबी ट्रेन के साथ देखा। 101 ऊँट थे और उनमें से प्रत्येक में बड़ी मात्रा में अनाज भरा हुआ था। किसान ने कहा, मैंने खुद ऊँटों की गाड़ियों को देखा है और वे बहुत भारी सामानों से लदे होते हैं। व्यापारी ने कहा, सभी ऊँटों को रस्सियों, नाक से पूंछ तक बांधा गया था। यह एक लंबी ट्रेन थी, लगभग आधा मील। अच्छा, यह एक अच्छा दृश्य रहा होगा। और फिर? किसान ने पूछा। व्यापारी ने जारी रखा, और फिर एक पतंग ने पहले ऊँट पर उड़ान भरी और उसे उतार दिया। लेकिन जैसा कि सभी ऊँटों को एक साथ बांधा गया था, अन्य सभी ऊँटों को इसके साथ रखा गया था। आप इसे क्या कहते हैं? किसान ने कहा, यह बहुत मजबूत पतंग रही होगी। क्या आपको इसमें संदेह है? व्यापारी ने पूछा। नहीं, मुझे क्यों करना चाहिए? किसान ने तुरंत कहा। अब व्यापारी निराश था, लेकिन उसने 100 रुपये पाने के लिए एक और प्रयास करने का फैसला
किया। उन्होंने जारी रखा, एक राजकुमारी अपने बगीचे में बैठी थी और एक नौकरानी अपने बालों को कंघी कर रही थी। राजकुमारी आकाश को देखने के लिए हुई। बस फिर मैं जिस पतंग के बारे में बात करता था वो उसके सिर के ठीक ऊपर आकाश में उड़ रही थी। पहला ऊँट ने चिड़िया पतंग को ऐसी लात मारी कि उसने उसे जाने दिया और ऊँट की ट्रेन राजकुमारी की बाईं आंख में जा लगी। गरीब लड़की 101 जानवर थे और उन्होंने उसे बहुत दर्द दिया होगा। और फिर व्यापारी को पता नहीं था कि क्या कहना है, लेकिन उन्होंने एक आखिरी सेटमेंट बनाया। फिर राजकुमारी दर्द से रोने लगी। उसकी नौकरानी ने उसके बालों में कंघी करना बंद कर दिया। उसने सावधानी से राजकुमारी की पलक को उठा लिया और उसकी आंख से एक के बाद एक सभी ऊँटों को निकाल दिया और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। वह एक अच्छी नौकरानी थी, किसान ने कहा। और तब व्यापारी ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकता था, तो उसने कहा, यह सब है और मेरी कहानी का अंत है। अब तुम्हारी बारी है।